मुंबई में गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल का आगाज, जहां इस फेस्टिवल को अटेंड करने पहुंचे बॉलीवुड के जाने माने सितारे। कौन कौन आया इस फेस्टिवल में नजर, चलिए देखते हैं। मुंबई में पहला गोल्डन जूरी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। इस अवार्ड फंक्शन में राहुल बोस, विदिता बाग, अंजलि पाटिल जैसे बड़े स्टार्स पहुंचे। विदिता बाग और अंजलि पाटिल बहुत इस इवेंट में खूबसूरत दिख रहे थे। स्टार्स ने मीडिया से बात करते हुए अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट का भांडाफोड़ दिया। स्टार्स ने क्या कुछ कहा और इवेंट में क्या कुछ खास हुआ, चलिए देखते हैं। मेरी फिल्म का नाम है एडम अगेन। ओके, और आपने क्या किरदार निभाया है? आपका एक्टिंग के बारे में थोड़ा सा बताइए। स्कूल गोइंग गर्ल थी, क्या थी आप? क्या कर रही थी तुम उस फिल्म में? हाँ? एक उस पे टेंट था, उसमें मैं काम कर रही थी। टेंट के अंदर थी, सरवाइव कर रही थी, है ना? दुनिया तबाह हो चुकी थी। और आपको काम करके मज़ा आया फिल्म में? बहुत अच्छा लगा फिल्म में। Nice. Oh no, I haven't watched any of the films in this festival. I have come to show my support for one of the directors of the festival, who was a cinematographer of Purna, a wonderful man called Subhranshu Das, and he's has become a dear friend over the last 3-4 years. So when he said, "Will you come for the closing ceremony?" I said, "Sure." There was never any. I never promised to come and see anything, but the fact that it's a short film and documentary film festival makes me very happy, because that is the place where you can see fresh original work before people start succumbing to the mainstream, before they spend so much money that they have to cast and compromise in their casting. So this is the time for these artists, these filmmakers, these actors to express themselves. So whenever something like this happens, I am very happy to support it. मैं जूरी में नहीं थी, मैं आज इनका कुछ एक डिस्कशन पैनल था, उसमें मैं आई थी। देखिए, नवाज़ जी अभी बहुत बिजी हैं, वो अलग अलग तरह के रोल्स कर रहे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स भी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। पर मैं मोस्टली, मुझे वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स मिल रहा है, सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ पे मुझे ज़्यादा फिल्में मिल रहे हैं। मैं उनके साथ तो काम करना चाहती हूँ, वो भी चाहते हैं, बट मौका नहीं मिल रहा है। मेरी एक फ़िल्म दयाबाई है, जो दयाबाई एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनके लाइफ पे बेस्ड है, वो आ जाएगी अगले साल, और अगले 1-2 दिन में भी एक अनाउंसमेंट होने वाला है जो मैं आपको बताऊंगी। So the Golden Jury Film Festival is mainly focusing on the new talent which is coming in the industry, and so it's basically giving platforms to the short filmmakers and performers, actors, technicians who are budding, who are working in films as their passion, as their love. And I was here to attend the closing ceremony and to felicitate the young generation who is trying to do something with the films. The festival director of Golden Jury, Subhranshu Das, who is also very well-known cinematographer. We have worked together. We have been friends in past years. So it was his idea, his seed, that they should. Bombay में बहुत सारे festivals होते हैं, but a festival who would give platform to the young generation, to the new people, was something very unique. And that's why I really appreciate the effort of Pragyesh Singh ji and Subhranshu Das for doing something like Golden Jury. क्योंकि बहुत सारे लोग बम्बई में बहुत सारे सपने लेके आते हैं, किसी को एक्टिंग करनी है, किसी को डायरेक्ट करना है, किसी को अपनी स्टोरी बतानी है, और सिटी के कुछ अपने रूल्स है, इंडस्ट्री के कुछ अपने सो कॉल्ड रूल्स है, बट ये जो बडिंग आर्टिस्ट है, उनका मनोबल, उनका धीरज बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, और गोल्डन जूरी फेस्टिवल इज़ डूइंग दैट। उनका वो मनोबल बढ़ा रहा है, उनको वो प्यार दे रहा है, जो इंडस्ट्री की जो फ्रैटर्निटी के लोग हैं, वो सब यहाँ पे आके उन्होंने देखी, फिल्में देखी, और उनका they supported all these film makers, and I really enjoyed the energy of the festival, because it's all people who are working from heart.
they were very much pure and not corrupted by the ideas of numbers yet. So it's a pure raw talent. Whatever you see right now is not touched by the commercial aspect of the industry. My New Year plan is to see, to actually see to be in a jungle for the 31st night. So I stay in the jungle without any noise and wake up to see the sunrise in the jungle. देखिए, ये मैं तो पहले ये बोलना चाहूँगी कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है कि आप लोग शॉर्ट फिल्म को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग। मैं किसी एक फ़िल्म के बारे में नहीं बता सकती बिकॉज मुझे सारे फिल्म्स इतने पसंद आए। एंड कभी कभी होता है कि पूरे फिल्म में आप लोगों को वो स्टफ़ नहीं मिलता है जो एक शॉर्ट फिल्म आपको बता देता है। तो टेक्निकली जितने सारे लोग हैं बहुत साउंड है एंड सारी फिल्म मुझे बहुत पसंद आई। और मुझे स्पेशली जो जोन है, जो डार्क जोन, उसको किस तरीके से उन्होंने प्रेजेंट किया, दैट इज़ रियली डिफरेंट एंड मुझे बहुत मज़ा आया। बाकी सारे आर्टिस्ट, सारे लोग बहुत सपोर्टिव है एंड इवेंट इज़ सुपर्ब। I am very happy to have received this award and I'm very grateful to the Golden Jury Film Festival and the entire team for appreciating the kind of work that we do in films. So yes, I'm very happy and delighted. It just encourages me to do all the more work. It was beautiful because all the films जो दिखाई गई हैं इस फेस्टिवल में सभी बहुत ही वेल मेड फिल्म्स हैं एंड they've all been done at a very professional level. कोई भी ऐसे novice film नहीं थी and from all of those films receiving 2 awards. So my film Chuhedani, it received 2 awards, one for the best screenplay and story and one for my performance as an actress. So I think it's extremely heartwarming and I'm filled with gratitude for this. So basically it's a short film, The Wallet. Cast में नसरुद्दीन शाह सर हैं and Navni Pariyar with my co-actors Gaurav, Nilofer Man, Rajat and Shivani Rai. And I won like 4 awards, which is Best Actor, Best Actress, Best Film and Best Edit. And the editor is Ashutosh Chaturvedi. So it's a film which is a old school love story. जहाँ पे it's a film of separation, love, and वो कैसे एक wallet के through मिलते हैं after 20-25 years back. The Wallet, it's a film. नसरुद्दीन शाह सर हैं एंड नवनी परियार। आई एम द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म वही इट्स अ ओल्ड स्कूल लव स्टोरी एंड जहाँ पे दो जो प्यार करने वाले होते हैं वो अलग हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न एंड दे मेट आफ्टर 20-25 years बैक। एंड जो फिल्म का मेन अच्छी चीज़ जो है, जो टर्निंग पॉइंट है, वो ये है कि वो दोनों एक ही ओल्ड एज होम में रहते हैं और उनको मालूम नहीं होता। तो वो एक वॉलेट के थ्रू मिलते हैं जो गौरव, जो मेरे फिल्म में एक्टर है, कैरेक्टर है आयुष्मान, उसको मिलता है एंड ही ट्राइज टू मीट देम 20-25 साल बाद। गोल्डन जूरी की तरफ से ये जो फर्स्ट फेस्टिवल मनाया गया है, इसको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि साल भर में हमने बहुत सारे फेस्टिवल बनाए और ये साल का लास्ट फेस्टिवल माना जा सकता है। तो हंसते हंसते और महोत्सव के साथ, गोल्डन जूरी के साथ अगर हम इस साल को गुड बाय कह पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाला साल गोल्डन जूरी के लिए और उनके तमाम कलाकारों के लिए और तमाम अवार्डीज़ के लिए जिनको अवार्ड मिला उनके लिए बहुत सारे गोल्डन मोमेंट और बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ पेश करेगा। दुनिया भर की फिल्में यहाँ पर दिखाई जाती है। 117 फिल्मों में 15 फिल्मों को अवार्ड मिल रहा है। इसका मतलब कि वाकई जूरी जो है बहुत ही पार की नज़र है उनकी। तो जूरी से यही कहना चाहूँगा कि जूरी आई लव यू। जूरी आप ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और जो डिज़र्व करते हैं उनको अवार्ड देते रहिए और जो डिज़र्व नहीं करते उनको अप्रिशिएट कीजिए और उनको दोबारा मौका दीजिए। वो ज़रूर अच्छा काम करके फिर से एक बार आएंगे और अवार्ड पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। नए लोग तो मेरा ऐसा मानना है कि नए लोग ही नई चीज़ ला पाते हैं, क्योंकि नया जहाँ जुड़ जाता है वहाँ नया ही नया होता है और पुराने जो है वो हमारा बेस मजबूत करते हैं, जड़ें हैं वो हमारे पुराने लोग जो है जिनकी वजह से ये तमाम सृष्टि खड़ी है। चाहे फिल्म दुनिया हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, जो पुराने लोगों ने इसे बनाया है, इस ज़मीन को बनाया है, जिसकी वजह से हमारा प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम खड़े हुए हैं। और नए लोग हमारे हरियाली है, उस पेड़ की हरियाली है। तो न्यू मतलब नया और न्यू मतलब जड़, ये हमारे दोनों ही मजबूत होना ज़रूरी है, जिसकी वजह से ये दोनों में से कोई अगर कमज़ोर होगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई पेड़ हरा रह पाएगा या एवरग्रीन रह पाएगा। हाँ, मेरी एक फ़िल्म की प्लानिंग चल रही है अभी हाल ही में बिग बॉस फिल्म
OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई है, आप देख ही सकते हैं, यूट्यूब पर भी आ गई है, ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा। बिग बॉस फिल्म, उसके बाद फिर 2-3 फिल्में और आई थी, लेकिन सबसे पहले हमारी बिग बॉस आई थी। और एक फिल्म और आ रही है, उसका प्लानिंग चल रहा है, अभी राइटिंग चल रही है, कॉमेडी फिल्म है, और वो भी आप तक जल्दी पहुंच जाएगी। और साथ साथ में सोशल मीडिया पर अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ, इंस्टाग्राम पर भी हूँ, और सुनील पाल के चौपाल यूट्यूब चैनल भी चल रहा है। तो आप मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तारीफ़ कीजिए, और क्रिटिसाइज़ करना चाहे तो वो भी कीजिए, आपका हक है। ऑल द बेस्ट। आप सबको मुबारक हो, नया साल, यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल।